Hello, coordinate geometry. Coordinate geometry, two-dimension geometry, or XY plane, or plane geometry, और कार्टेशियन ज्योमेट्री. सी है, इसमें क्या होता है कार्टेशियन ज्योमेट्री में? एक्स कोऑर्डिनेट इज एप्सिका एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. देखो, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री plane is divided into two axes, x axis and y axis. Okay. अभी point in a plane is denoted by a combination of x coordinate and is divided into x coordinate and it's denoted by a combination of x coordinate and y coordinate. Location of a point is denoted by ये y है और ये x है. 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -2 -3 -4. Okay. Now here suppose point is 4, 3. So x is 4 and y is 3. तो ये यहाँ मिलेंगे. ओके, 4, 3. से 2, -1. तो ये 2 है, x is 2 and y is -1. You get this point here, 2, -1. Okay, now there are 4 quadrants here. First quadrant, second quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. या यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y. यहाँ पे x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. हियर बोथ आर नेगेटिव एंड हियर x is positive, y is negative. Okay, 4 quadrants are there as shown here. Okay, है ना? This is given points location minus this is -2, 3, then 2 1, -2 1, 2 and so on. The plane is divided into 4 equal parts by 2 perpendicular lines. The horizontal line is known as x-axis and vertical is known as y-axis. The point of intersection of these two lines is called origin. To represent graph of any point, we always write x-axis, y-axis, where x is known as f star and y is known as coordinate, and together they are called coordinate. Okay, if x lies on x-axis, then y-axis is 0. That is x-axis, 0 होता है. And if point lies on y-axis, then x coordinate x is 0 and y is on axis. Now here we will do some properties of a line. See,
A straight line. What is a straight line? A straight line is minimum distance between any two points. ओके, मिनिमम डिस्टेंस, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक है और ये बी है. ओके, अब यहां से ए से बी जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं, ये दूसरा तरीका है जाने का, ऐसा. लेकिन अगर तुम लोग को मिनिमम डिस्टेंस से जाना है, न्यूनतम दूरी, फटाफट जाना है, तो स्ट्रेट जाने का. ओके, a straight line is a minimum distance between any two points. A point is denoted by x comma y. Okay, a point is denoted by what? X comma y. Now what is a straight line? Straight line is a minimum distance. तो अभी तक क्या पढ़ा हमने? Point is denoted by x comma y. Okay, and second, straight line joins two points with minimum distance. Now, okay, suppose say point is A and this is B. This is x1, y1 and this is x2, y2. Okay, now every line has a slope which is constant. हर एक लाइन का स्लोप होता है. क्या होता है? उसकी ढलान होती है, स्लोप होता है. स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 5, 2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 9, 14. ओके, अब तुम लोग स्लोप कैसे भी, किसको भी x2 ले सकते हो. ऐसा अगर हम स्लोप निकालेंगे यहाँ क्या होगा? 14 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन 9 माइनस 5. तो ये 12 और ये 4. तो स्लोप कितना आया? स्लोप इज 3. ना अगर है ना यहां पे हम पॉइंट सी डालेंगे ना, क्या बीच में, तो भी स्लोप ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ए सी इज इक्वल टू स्लोप सी बी. अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो सब स्लोप सेम रहेंगे. ओके, फिर पांचवा पॉइंट, every line has a equation. Equation is satisfied by each point on the line. Example,
Now how to find equation? How to find equation? इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है या तो 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. क्या चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, या चाहिए होता है स्लोप ऑफ लाइन प्लस 1 कोऑर्डिनेट ऑफ 1 पॉइंट. ओके, 2 पॉइंट चाहिए होंगे तो स्लोप तो निकल जाएगा. फिर 1 पॉइंट चाहिए, स्लोप आ गया, फिर एक ही पॉइंट चाहिए. ये लिखो पहले, मैं एग्जांपल बताता हूं. ओके, हेलो, लिखा? ये लिखा कि एवरी लाइन हैज इक्वेशन. इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. हाँ हाँ, लिखो. हेलो, ये लिखा? अब है ना, आगे की स्टोरी. नसीहत, मैंने क्या पॉइंट दिया था ए और बी का? 5, 2 ना, एंड 9, 14 ना. यस और नो? अभी इसका स्लोप क्या निकाला था हमने? 14 minus 2 upon 9 minus 5, that is 12/4 is equal to 3. ये स्लोप निकाला था कि नहीं? अभी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कैसे बनाने की? इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, y minus y1 is equal to m into x minus x1. जैसे है ना, इस लाइन का स्लोप है ना, इसको m बोलते हैं. स्लोप क्या था? 3 था. और कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज हमने पॉइंट ले ली 9, 14. ओके, स्लोप लिया m और 9 minus 14. एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. अभी इसको ऐसा करने का, y माइनस ये क्या है? 14, m क्या है? 3. ऑफ कोर्स ये हमने x1 y1 y2 लिया था, कोई भी एक y लेने का. 3 इंटू x माइनस 9, ये 9 यहां से लिया. हाँ, इधर नंबर लेने का, नंबर y माइनस 5. तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 27. अगर जीरो कर दें यहाँ पे तो क्या होगा? 3x माइनस y, 3x माइनस y.
इज इक्वल टू -27 प्लस 14, 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। समझा? 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर तुम लोग बोलोगे कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं 5 2, यार देखो इसमें 5 और 2 डालो, 3 इंटू 5 15 माइनस 2 13 होता है, -2 करेंगे तो, और माइनस 13 0 होता है कि नहीं। अच्छा, ये सेम इक्वेशन ऐसे भी आ सकती थी, स्लोप m इज इक्वल टू 3 और पॉइंट 5,12 5,2 सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू m क्या है 3 इंटू x माइनस 5। ओके, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, 3x माइनस वाई माइनस 13 होगा, इसको सबको लेंगे 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 13। सेम आया कि नहीं? तो कोई भी पॉइंट लेंगे, अब है ना, अच्छा, तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई। इसके बीच में भी कोई पॉइंट होगी ना, अगर बीच में कोई पॉइंट आती है तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। जैसे अगर है ना C है, टू है, टू को ये और ये 6 है, क्या ये C इज 6,5। हाँ, अब है ना C 6,5 है सपोज, और C यहां पे है। ओके, नाउ हियर C 3x क्या होगा, 3x 3 इंटू 6 माइनस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। तो C अगर उस पे है तो C भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर C सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन तो मतलब वो लाइन पे नहीं है। ओके, नाउ अब here every line has equation is satisfied by each point of the line. Now distance between any two points on a line, अगर समझो हम लेते हैं वापस से A B, A क्या लिया था हमने, B क्या लिया था, नाइन कॉमा 14 लिया था ना। ओके, ना, और C क्या था 6,5। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो डिस्टेंस होगा रूट ऑफ y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 9 माइनस 2, नहीं पहले y लिया ना, 14 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 द होल स्क्वायर है ना।
ये डिफरेंस, और 2 माइनस 14 करेंगे स्क्वायर तो भी एक ही बात है फिर। ओके, 9 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 14 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना होगा? 140, 144। हाँ, 14 माइनस प्लस ये कितना होगा? 16 ना, 144 प्लस 16 दैट इज हाउ मच? रूट 158 है ना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा, ये 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 स्क्वायर, 16 प्लस 144, हाँ सर 160 होगा। ओके, समझा ये? हाँ ना, 160 होगा ये। अब क्या है कि इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, ओके, if 3 points are what? Collinear, then slope AB is equal to slope BC is equal to slope AC। मतलब AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप तीनों सेम रहेंगे। ओके, if 3 points are collinear, slope AB is equal to slope BC is equal to slope AC, and if, या फिर डिस्टेंस से करेंगे, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC is equal to distance AC, where AC is largest distance। हाँ, तीनों का डिस्टेंस निकालने का और बताने का तो कोलिनियर माने जाएंगे। फॉलो दिस नाउ। अब if 2 lines having different equation intersect, then the point of intersection satisfies both the equations. So if 2 lines having different equations intersect, जैसे 2x plus 5y, 2x plus 5y is 27 suppose, okay, and 5x plus y is equal to okay. Now these are the two lines, different lines. अभी ये लोग दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करने का, कैसे निकालने का? इसको है ना 5 से मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 135, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 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 23y is equal to 115, y is equal to 115 upon 23 is equal to 5, और सब्स्टिट्यूट 2x plus 5 into 5 is equal to 27, तो y is equal to, sorry, x is equal to 1, okay।
तो इंटरसेक्शन कहाँ पे होते हैं मालूम? ये लोग कहाँ मिलेंगे? 1,5 कहाँ मिलेंगे? 1,5 पे दोनों बातें सेटिस्फाई होती है ना। ये 1,5 दोनों में पुटअप करो। 1,5 1 प्लस 2 into 1 is 2 plus 5 into 5 is 25 is 27. ओके, आया समझ में? हाँ, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट होगी। अच्छा, लास्ट चीज फिर हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन from its equation. Okay, write in the form of y is equal to mx plus c. इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे लाइन हमने ऊपर ली थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 27, है ना। तो 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 27 और अकेला y क्या होगा? माइनस 2/5x प्लस 27/5। तो ये ना, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2/5। लिखो ये लिखा तुम लोगों ने क्या पहले? समझा ये कि इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालने का। अब है ना, इसको सही तरह से लिखते हैं। तो अगर इक्वेशन लाइन की ऐसी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी वाई इज इक्वल टू क्या? माइनस एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बाय बी माइनस सी बाय बी, है ना। तो स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप? माइनस ए बाय बी। हाँ, नहीं ये स्लोप नहीं होगा, ये स्लोप होता है खाली। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x प्लस सी या माइनस सी। ओके, कांस्टेंट y अकेला कर देने। तो स्लोप क्या होता है लाइन का? माइनस ए बाय बी, है ना। अच्छा, इफ two lines are parallel, two lines are what? Then their slopes are equal. That is, m1 is the slope of first line is equal to m2. If two lines are what? Perpendicular. If two lines are what? Perpendicular, then product of slopes is minus 1. That is, m1 into m2 is equal to minus 1. m1 is equal to minus 1 by m2। लिखो ये। समझा ये?